My question is while you because you come from a formal innovation system and you have seen that there is an innovations already existing in the the Prajapati community. So how you have mixed this two and how this can come as a model for India? Like you have heard about Swami Bhavishananda ji, उन्होंने बताया कि कैसे जो गांव की जो नवाचार जो खेत पे होते थे उनको ऐसे लेबोरेटरी में लेके उनकी वैलिडेशंस की बात कैसे फिर वापस दिया. आपकी क्या विचार है? क्योंकि what you are doing, that is another one component of the doubling the farmer income. क्योंकि आप देखेंगे डबलिंग द फार्मर इनकम में बोला गया कि एग्रीकल्चर सिस्टम की एक लिमिटेशन है, वो कुछ हद तक दे सकते हैं. उनके फार्मर की इनकम डबल करना है तो जो नॉन फार्मिंग जो सिस्टम है गांव में उसको भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के माध्यम से. इसमें आपकी सुझाव क्या चैलेंजेस है और क्या हम इसको कैसे आगे ले जा सकते खाली डीएसटी और सीएसआईआर नहीं, क्योंकि आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो विचार है, ये पूरे देश के सामने आप कैसे ला सकते हैं और कैसे हम एक मॉडल डेवलप कर सकते हैं जो कि शायद हम सारे विश्व को सिखा सकते हैं और वही हमारे विश्व गुरु होने का एक रास्ता दिखा सकते हैं. डॉक्टर सोलंकी. थैंक यू दत्ता साहब एंड नमस्कार टू ऑल द पैनलिस्ट. सबसे पहले तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द कम्युनिटी मेंबर्स एंड जो चेंज मेकर जो आज हमारे साथ थे, तो उन सबके बिहाफ पे आई वांट टू थैंक दिस Techneev @75 team to devise such a wonderful program, and not only devise but making it implement also. And they feel that there is someone who is there to appreciate their efforts, and there is someone who is able to listen to their problems, and someone who is trying to solve their gaps in between. So they are very happy, and on behalf of them I am thanking you, I am congratulating you. अब जैसे आपने सोलंकी जी, उनको ये भी आप बता देना हम भी उनसे सीखने के लिए तरस रहा है. ये टेक्नीव खाली हम उनको सशक्तिकरण नहीं किए, हम उनसे भी सीख रहे, क्योंकि सीखना दो साइड से होता है, एक साइड से होता नहीं है. और जब तक ना हमारा फॉर्मल सिस्टम उनसे सीखेंगे, हम भारत की जो मॉडल हम नहीं निकल पाएंगे. खाली हम बाहर की नॉलेज लाके फिर उनको सिखाएंगे, वो भी हम जैसे बन जाएगा. हमें तो उनसे सीखना है, तो ये भी हम भी उनसे सीख रहे हैं और हम भी we feel like we have this opportunity to interact them, and a digital platform is providing us. So हमारे ओर से भी उनको थैंक यू बता दीजिए. Correct sir. So I will communicate this once again to them, and it is very humble of you sir, I must say. And अभी जैसा आपने बताया कि हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, or being even in the field of a formal scientific activity, how I have been able to interact with these people and been able to make some change in their life. So actually our center is a small center of CSIR-CGRI, and we are located at Naroda. So it is an extension center, so you may be aware that in CSIR system these type of extension centers are for some specific purpose. So in Gujarat, Morbi, we have a cluster of ceramic industries, and for the benefit of those ceramic and allied industries, our center is working, and we have basically 3 verticals, area of activities. So in which one activity is we provide them state-of-art testing facility, analysis facility, certification. Second is we conduct R&D programs for technical problem solving, and third mandate is our human resource development through imparting various trainings. So I feel that we are lucky that we have direct contact with these industries, and we could understand what exactly the ceramic industries they are practicing. For example, sleeve casting is not a new thing, or some types of, let's say, jigger jolly and other things are not new for ceramic industry. But at the same time, the government of Gujarat is also supporting us. And there is an institution called GMKRTI, Gujarat Matikam Kalakarigari Institute, Gandhinagar. So we have interactions with them, and they said that Prajapati community to whom they are catering, and they are having some problems. So we discuss it, and we propose them that we could do these type of activities. We could introduce this technology to Prajapati community, and they supported us. GMKRTI supported us.
and that's how we devised a program called Integrated Pottery Development Project. So that was IPDP, popularly known. And in this program, we got opportunity to travel to all the 32 districts of the Gujarat, and we went there. We went to the village of let's say more than 925 villages, and we met more than 3,800 families, wherein we understood what exactly they are doing and what we have done. Those things are, I mean, described. I will not take much time, but what I want to tell is whatever experience we have got from that, I want to give some input, some I want to share my input so that it may be helpful for future roadmap and devising some model. So what I feel is when any industry or any economic activity which is based on natural resources, then in that case our first step should be to scientifically thoroughly understand the activity and second thing is validate it. I mean, we should scientifically see whether they are doing is correct or some improvement is required, some gaps is there, or how to identify those gaps and how to address those gaps. And then once we come with some kind of a technological solution, then for formal educated people or industry people, it is very easy. We can translate, we can showcase them some benefits, and they can adopt it straight away. But to village people, when we go and teach them, so at that time it is sometimes a change. It is like management of a change. So we have to step by step we need to approach them. So first what we did is we went to the villages, we sensitized them, and then we demonstrated them these things. So in 5 days programs, we went to the villages with our sleep and our molds, and we demonstrated them that this thing is possible. So once they see with their eyes at their own place that this thing is happening, then they got motivated and they came to our center for further training for 10 days, wherein we introduce them to different types of machines and different types of production techniques. So there they have a first-hand experience. And later on, we had advanced level programs in which it is a 15 days training program, and now it will be 20 days training program. So in that training programs, we introduce them. I mean, you can say from top to bottom sort of activities are covered. Because ultimately what we want is them to become self-sustained, and it should not be like today if I say that one bottle is having good market, so they should make bottle, and then after 5 days, after 5 years, 10 years, suppose every product has a life cycle, right? So we educate them that they themselves should come out with new products, new ideas, so that they should understand what is requirement in the market, okay, and what is the new technologies coming in the market. So we educate them. We have introduced a model training module in which we teach them about soft skills, and we teach them about some kind of a basic calculations, and their they should understand the economy of their activity. And latest this marketing tools, like nowadays there is a more than 40 marketplaces are there, e-marketplaces. So how to connect to the world through these marketplaces? So those all things exposure we are giving to them. And once this problems and everything is identified, then training part is very essential to any community. Actually, I am talking about. डॉक्टर सोलंकी इस मोमेंट में आई जस्ट वांट टू ब्रिंग एक पॉइंट, क्योंकि आप ये जो देख रहे हैं कि जो हमारा फॉर्मल सिस्टम इनके साथ जो इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन आप प्रजापति संप्रदाय को देखेंगे, हम और आप जाने से बहुत पहले से ये लोग अपने ये जो व्यवसाय में जो थे, तो उसमें भी ये लोग क्या करते थे, हाँ शायद उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी वो खुद की नवाचार से
आपको याद होगा ये जो उससे जो बना जाता था, व्हील से जो बनते थे, वो खुद ही इनोवेट करते थे अपने हिसाब से, क्योंकि एक प्रोडक्ट तो आप देखेंगे 100 साल की इनकी दादा परदादा की कहानी, उसमें भी इनोवेशन हुआ है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनके हिसाब से कि कैसे एक मार्केट को लिया जाता है। हो सकता है कि वो मार्केट की परिधि बहुत बड़ा नहीं था, गांव, 2 गांव, 4 गांव की परिधि में था। तो ये हमारे जो अभी सपोज नाउ यू टॉक अबाउट ई कॉमर्स, एक साइड तो है जो टेक्नोलॉजी, जो कि अमित भाई ने पहले भी बताया था, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन होता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी वो जो, क्योंकि ये इन्होंने लिया है, क्योंकि ये ऑलरेडी इनकी जो लाइवलीहुड सिस्टम का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि उसी सिस्टम को आपने इंप्रूव करने की कोशिश किया, इसलिए लिया। अभी उनका एक मार्केट समझने का एक तरीका था, क्योंकि हमें उसको भी सम्मान करना पड़ेगा। और हमें जो टेक्नोलॉजी अभी जो नया आ रहे, आपको क्या लगता है कि ये जो इसके साथ हमारे एक अलाइनमेंट रहे, उसकी इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा, और एक मतलब पूरी नए सिस्टम लाने से उनकी इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा? नहीं, ये जो उनकी एक्टिविटीज जो है, वो आपने सही बताया कि इनकी एक्टिविटीज में ही स्मॉल स्मॉल चेंजेस करके उनको ग्रेजुअली एक लेवल पे लाना चाहिए। जो ड्रास्टिक चेंज है, तो दैट ड्रास्टिक चेंज कभी भी वो फुल्ली इम्प्लीमेंट या अडॉप्ट, वो दिक्कत रहती है। तो वो अप्रोच तो आप सही बता रहे हैं कि उनको ग्रेजुअली उनको उसमें लाना चाहिए। और ये लोग जो है, आपने जैसे बताया प्रजापति समाज पहले से ही ये काम तो करते ही है, और उसमें से हमने जो स्टडी किया उसमें से ये पाया कि ह्यूमन ड्रजरी है और इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है। तो और वो साइंटिफिकली हम लोग उसको सॉल्व कर सकते थे, इसलिए हमने ये अप्रोच रख के उनको डेमोन्स्ट्रेट किया। और फिर ये सब बातें, हमारा कहना ये था कि सेल्फ सस्टेनेबल अगर कोई सिस्टम रहे, एक बार आपने कुछ इनपुट दिया, इंटरवेंशन प्रोवाइड किया, कुछ आपने ट्रिगर दिया है कम्युनिटी में, तो वो ट्रिगर के बाद वो कम्युनिटी शुड बी एबल टू हैव सेल्फ सस्टेन्ड thing with them. It should not be like every 4 years, 5 years they should again come to the center or scientific institute for again some kind of a new input. That is possible, but what we should look into is self-sustainable. And here जैसे कि ये हमारा यही एफर्ट है कि उनको जो हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस से जो हम लोग उनको अवगत करवाते हैं, उससे ये होता है कि प्रोडक्ट्स वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया, वी आर ऑल्सो अमेज्ड टू सी व्हेन दिस कम्युनिटी पीपल दे केम हियर, उन लोगों ने, जैसे कि ये रुद्राक्ष की एक माला जैसी अभी बनती है, रुद्राक्ष जो है वेरी होली थिंग, राइट। तो इन्होंने ये रुद्राक्ष की माला खुद बनाई है, मिट्टी से बनी हुई है। अगर हमने ये पहन के कहीं गए हैं, हाथ में पहन के एज ए बेल्ट या कुछ भी, तो नो वन विल बी एबल टू मेक इट आउट कि ये मिट्टी से बनी हुई है, असली रुद्राक्ष नहीं है। तो नाउ ये जो है, इस तरह से वो लोग खुद ही अपनी प्रोडक्ट सोच रहे हैं। जैसे कि ये जो टेम्पल में जो हम बेल बजाते हैं, तो वो भी मिट्टी का उन्होंने डिवाइस किया हुआ है। अभी एक मैडम जो थे, उन्होंने यही नवाचार है, यही उनकी नवाचार है जिनको हम स्ट्रेंथन कर सकता है। हमने उनको मेथड बता दिया कि आप ये बना सकते हैं। जैसे कि ये अभी है एक, तो ये जो विंड चाइम की तौर भी काम कर सकता है, ये टेम्पल में भी काम कर सकता है। एक मैडम जो है, उन्होंने जो फाउंटेन्स होते हैं, जैसे उसमें कुछ पीसीस, जो कुछ बॉटल्स, कुछ ये लगा के, कुछ प्लेट्स ये लगा के, उन्होंने नीचे एक छोटा सा डिवाइस लगा दिया मोटर जैसा, और उसमें से उन्होंने एक प्रोडक्ट ऐसा बना दिया कि जो फाउंटेन हो गया है। अभी वो फाउंटेन जो है, उसका रेंज आप 1000 से लेके 30,000 की रेंज में वो बिक सकता है। उस तरीके का उन्होंने ये इनोवेशन। तो हमारा कहना मतलब ये कि सेल्फ सस्टेन मॉडल डेवलप होना चाहिए। बहुत बढ़िया। लाइक मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके पास से, क्योंकि आप है, हम जैसे एक फॉर्मल इनोवेशन सिस्टम की रिप्रेजेंटेटिव, आपने ग्रास रूट कहिए, इनफॉर्मल इनोवेशन सिस्टम के साथ इंटरेक्ट किया है। हमें क्या सीखना है उनसे? व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम देम? हमें यही सीखना है कि ये एक्चुअली साइंटिफिक इंस्टीट्यूट की ओर से कोई फॉर्मल एक्टिविटी
होनी चाहिए, जहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी जो भी आउटपुट है, जैसे कि कोई एक फील्ड में कोई अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, तो इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू दैट फील्ड ओनली. इट मस्ट बी हैविंग एंड इट इज हैविंग इम्पैक्ट ऑन अदर सेक्टर्स ऑल्सो. ठीक है, जैसे कि ये सिरामिक सेक्टर की टेक्नोलॉजी है, तो हम लोगों ने वो मिट्टी काम करने के लिए जो है उनको भी दे दिया है. तो उस हिसाब से एज अ साइंटिस्ट, एज अ पॉलिसी मेकर, एज अ चेंज मेकर, वी शुड थिंक that what are other technologies available in other sectors, and other sectors they must be doing some wonderful output. तो ये जो है उसमें से छोटा मोटा कोई चेंज करके दूसरा कोई सेक्टर है उसमें उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए. तो ये जो चीज है वो हम लोगों को देखना चाहिए एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट में बैठ के, so that एक टेक्नोलॉजी का भी हम सब समझते हैं कि लाइफ साइकिल होता है. ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल एक सेक्टर में खत्म हुआ तो वो टेक्नोलॉजी दूसरी लाइफ साइकिल में दूसरे सेक्टर में चल सकता है. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोलंकी. आपको जो कम्युनिटी के साथ काम करने के जो एक्सपीरियंस है उससे हमने जो देखा, आपने जो कहा, मैं ढूंढ रहा था कि जो नए हमारे मॉडल है इसमें क्या इनपुट मिल सकता है. आपने एक बात बहुत अच्छा बोला कि एक जो थ्रेशोल्ड वैल्यू, जिस थ्रेशोल्ड के बाद कम्युनिटी खुद ही इनोवेट करते रहे, उसको सस्टेन करते रहे, वही आत्मविश्वास, वही आत्मनिर्भर भारत की वही मॉडल होगा. And this is, I think, probably a new model of the management, what we are talking about, of the social entrepreneurship, social enterprise we need to develop. And this is a very good, the input ki, threshold, different community, different, जैसे एग्रीकल्चर में कहिए, और जो हस्तशिल्पी है और जो दूसरा शिल्पों के लिए शायद क्या होना चाहिए का, और अलग अलग जगह में, क्योंकि गुजरात में एक अलग होगा, क्योंकि गुजरात में आप देखेंगे जो बाहर और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो सपोर्टिव है. ये इसी को लेके आप जब जाएंगे, शायद आप राजस्थान में जाएंगे तो उसका जो थ्रेशोल्ड वैल्यू अलग होगा. प्रोबेबली ये हम निकाल के लाए तो ये एक मॉडल की तौर पे निकल के आएगा. दूसरा, आपने बताया कि हमें देखना पड़ेगा जो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर रहा है उसकी जो हॉरिजॉन्टल दूसरे सेक्टर्स में उसके क्या उपयोग हो सकता है. जैसे कि हमारे मेडिसिन के केस में देखा जाता है कि एक मेडिसिन एक बीमारी के जगह दूसरे बीमारी को कैसे ठीक कर सकता है. ऐसे ही एक टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल दूसरी सिस्टम के लिए कैसे उनकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं. बहुत 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 धन्यवाद सोलंकी जी, जो आपकी जो एक्सपीरियंस है, आपने ये जो पॉइंट्स आपने जो लाया है, हम इसको डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करेंगे. तो